Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to present second video of part 1 on the provisions of Indian Penal Code 1860. It means this is second video on the provisions of IPC. In this lecture we will discuss on the structure of Indian Penal Code 1860. In the earlier video we have discussed the history of making of the IPC. In this lecture, I will show you the art of drafting of the code. You know that there are originally 23 chapters and through several amendments 3 chapters have been inserted time to time, so there are total 26 chapters in the code. The chapters which have been inserted through amendments are chapter 5A, chapter 9A and chapter 20. These chapters have been inserted through amendments in the code. Originally, there were 23 chapters. It means right now there are 26 chapters in the code. मित्रों, भारतीय दंड संहिता के रूपरेखा का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं, जिसमें हम आपको यह दिखाएंगे कि इसके ड्राफ्टिंग की क्या आर्ट है, किस कुशलता से इसको ड्राफ्ट किया गया है। इस संदर्भ में आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि भारतीय दंड संहिता की मूल रचना में कुल 23 अध्याय थे। 3 अध्याय बाद में समय समय पर जोड़े गए हैं संशोधन के जरिए, जो है अध्याय 5 को आपराधिक षड्यंत्र, अध्याय 9 को ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शन, निर्वाचन से संबंधित मामले, चैप्टर 20 ये 20 को क्रुएल्टी बाय हस्बैंड हिज रिलेटिव्स, पति या उसके नातेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता। ये 3 अध्याय बाद में जोड़े गए हैं समय समय पर। इनको मिला करके कुल 26 अध्याय और 511 धाराओं में विभक्त इतनी बड़ी संहिता का वर्गीकरण कैसे किया जाए या कैसे किया गया होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। It is very important to understand that on what grounds the different chapters have been categorized in its draft and how the huge codification have been categorized into 511 sections originally. Primarily, I have classified the whole code into 2 groups. From chapter 1 to chapter 3, it means the first 3 chapters I have categorized in first group, and all other chapters from chapter 4 to chapter 23 have been categorized in another group. The ground is, I have classified the provisions of chapter 1, chapter 2 and chapter 3 under a common heading of introductory provisions, while the rest chapters have been categorized by me under a common heading of penal provisions. You may be agree with the classification or not, okay, because there may be classification on several grounds by several ways, but I am making the classification to make the study of the code easy and interesting, to make you able to memorize easily the number of chapters with their objects. तो मित्रों, हमने सबसे पहले इसके सभी 23 अध्यायों का 2 वर्गों के आधार पर वर्गीकरण किया है। हमने प्रथम वर्ग में अध्याय 1, 2 और 3 को रखा परिचयात्मक प्रावधान के नाम से।
दूसरे वर्ग में हमने दांडिक प्रावधानों के अंतर्गत शेष अध्यायों को रखा, अध्याय 4 से 23। अर्थात प्रथम 3 अध्यायों में किसी अपराध के बारे में कोई चर्चा नहीं है। इट मीन्स इन फर्स्ट 3 चैप्टर्स देयर इज नो प्रोविजन अबाउट एनी ऑफेंस और देयर इज नो प्रोविजन रिलेटेड टू एनी ऑफेंस। ओके, इनमें किसी अपराध से के संबंध में कोई चर्चा नहीं है। हाँ, यह सही है कि अन्य आधारों पर भी विभिन्न तरीके से इसका वर्गीकरण हो सकता है। इस नाते आप मेरे वर्गीकरण से सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक विद्यार्थी के नाते भी आपका दायित्व बनता है कि मेरे द्वारा किए गए वर्गीकरण की आलोचना करें और अपना स्वयं का एक वर्गीकरण करें। निश्चित रूप से यह आपको आईपीसी की समझ विस्तृत करने का एक कारण बनेगा। हमारे इस वर्गीकरण का लक्ष्य इतनी विशद संहिता के अध्यायों को याद करना, समझना आसान और रुचिकर बनाने के लिए है। पहले 3 अध्याय में क्या क्या है, किनका किनका इंट्रोडक्शन है, तो इनको मैंने क्लासिफाइड किया है अपने नाम से, अपने हिसाब से मैंने इनकी हेडिंग्स को चेंज किया है चैप्टर्स की। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ द कोड, चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल टर्म्स, phrases etc, general explanation. Okay, chapter 3 of punishment, introduction of punishments, दंडों का परिचय, तमाम शब्दों का परिचय, स्वयं संहिता का परिचय। We will discuss all 3 chapters in part 1 videos. Okay, हम लोग पार्ट 1 की वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर और संहिता के प्रस्तावना पर इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चर्चा कर लेने के बाद इन तीनों अध्यायों की चर्चा भी इस आईपीसी के प्रथम वर्ग के वीडियोज में ही की जाएंगी। ठीक है, सो these 3 chapters shall be discussed in part 1 videos on the videos of Indian Penal Code. Okay, now come on penal provisions. Penal provisions means the provisions related to offenses, whether defenses or offenses, whether it is about that elements which are required to establish criminal liability. Okay, and which are required to be proved for establishment of criminal charge, or whether after proving it one person becomes free from criminal liability. Okay, so I have classified the rest chapters into 2 groups. Chapter 4, just one chapter of defenses, while the rest chapter 5 to 23 of offenses. दांडिक प्रावधानों को फिर हमने 2 वर्ग में बांटा। अध्याय 4 अपराधों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बचाव की बात करता है। यह बताता है कि किन परिस्थितियों में किया गया कार्य जो कि अन्यथा अपराध होता, उस परिस्थिति में किए जाने की वजह से कब अपराध नहीं होगा। किस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य उस व्यक्ति के किसी विशेष अवस्था के नाते कब अपराध नहीं होगा। सो दीज आर डिफेंस प्रोविजंस provided in chapter 4. These have direct connection with penal provisions. This is not just introductory provision. These are connected with the penal effect. Okay, so why I have classified this chapter also under this heading, penal provisions. Okay, the other chapters, chapter 5 to 23, have been classified by me in the second group under the heading of penal provisions. दंडिक प्रावधान शीर्षक के अधीन जो दूसरा वर्ग है उसमें मैंने ऑफेंस अपराधों की चर्चा की है, जो अध्याय 5 से 23 तक है। ओके, आप देखते जाएंगे कि आईपीसी के ड्राफ्टमैन ने कितना बढ़िया ड्राफ्टिंग इसकी की है। देन आई हैव क्लासिफाइड द होल चैप्टर्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ वेदर द ऑफेंस is without its result or with results, whether for criminal liability result is not required or result is required, the offenses for which result is not required, like of abatement of any offense,
of conspiracy of any offense, or of attempt of any offense, or of preparation for any offense. If conspiracy is punishable, then there's no need to prove the result of conspiracy has been done. So these are called as inchoate offenses. अपूर्ण अपराध इन्हें कहा जाता है। तो हमने अध्याय 4 जो बचाव की बात करता है को अलग वर्ग में और दंडिक दायित्वों की बात करने वाले प्रावधानों को अलग वर्ग में रखा अध्याय 5 से 23 में, और इसको पुनः हमने वर्गीकृत किया 2 वर्गों में। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे आपराधिक दायित्व हैं जिनके लिए जरूरी नहीं है कि अपराधी जिस परिणाम की प्राप्ति का आशय रखकर, उद्देश्य रखकर कार्य किए, उस उद्देश्य या उस परिणाम को प्राप्त किए हों। जैसे आपराधिक प्रयत्न, आपराधिक षड्यंत्र, किसी अपराध का दुष्प्रेरण, किसी अपराध की तैयारी, ये ऐसे दायित्व हैं जिनमें यह स्पष्ट होता है कि अपराध पूरा नहीं हुआ, फिर भी दायित्व होता है। तो इस संदर्भ में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? पहले 2 अध्याय, चैप्टर 5 ऑफ अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, चैप्टर 5A व्हाट हैव बीन इंसर्टेड इन 1913 बाय अमेंडमेंट इन द कोड, ठीक है। अध्याय 5 को धारा 120 को और 120 को आपराधिक षड्यंत्र, सेक्शन 120A and 120B have been inserted. और अध्याय 23, the last chapter, it means the first 2 chapters of this group and the last chapter of IPC have been classified in a common group under the heading of inchoate offenses. And some sections of the code provides punishment for preparation of some offenses, like preparation for war, or preparation for robbery or war in friend country, or preparation for dacoity. These 3 sections provide punishment for different kinds of preparation. Section 122, Section 126, and Section 399. Under Section 122, there is preparation of beginning war against country has been punished, declared to be punishable. Waging war in any friend country or making preparation for robbery in a territory of friend country is punishable under Section 106, and preparation for commission of dacoity is punishable under Section 399 of the code. संहिता की धारा 122 में भारत के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, 126 में भारत के किसी मित्र देश के सीमा के भीतर युद्ध करने की या लूटपाट की तैयारी करना, और धारा 399 में डकैती की तैयारी करना, ये दंडनीय बनाए गए हैं। इस प्रकार ये सारे प्रावधान अपूर्ण अपराधों से संबंधित हैं, उन अपराधों से संबंधित है जिस अपराध को करने के प्रयत्न, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र या तैयारी के लिए जिसको दंडित किया जाता है, वो उसका परिणाम अभी नहीं उत्पन्न किया होता है, यानी चाहे परिणाम हो या न हो, इनके लिए वो व्यक्ति दायी होते हैं। जबकि शेष अध्याय परिणाम के सहित किसी कार्य को दंडनीय घोषित करते हैं, यानी ये कंप्लीट ऑफेंसेस है, ये पूर्ण अपराध है, जिनको चैप्टर 6 to 25 में 22 में सेक्शन चैप्टर 6 to 22 of the code provides punishments for the offense with their objectives, with their results. ठीक है, अपने परिणामों के साथ किए गए कार्यों को जो दंडित करने की बात की गई वो अध्याय 6 से 22 में लिखे गए हैं। ये बहुत बड़ा वर्ग है, अध्याय 6 से 22। जिस संहिता में कुल 26 अध्याय हो, उनमें से इतने वर्गीकरणों के बाद भी अगर एक ग्रुप में अकेले अध्याय 6 से 22 यानी केवल 5 अध्याय निकाले जाएंगे 22 तक से, तो कुल कितने बचे? 20 और 4 16 अध्याय, 16 और 1 17, कुल 17 अध्यायों का वर्गीकरण, यानी 26 अध्यायों में से अभी 17 अध्याय एक ग्रुप में बचे हुए हैं। There are 17 chapters even in a single group here. It means these chapters must be classified further, कि अभी इन्हें आगे भी वर्गीकृत किया जाना चाहिए। I have classified these into 2 groups. From chapter 6 to chapter 15, the offenses are of nature that these are against either state or against government or against public, etc. Okay? While the offenses provided under chapter
16 to chapter 22 are through individual. Okay, these might be against state, but these are through an individual. अध्याय 6 से 15 तक के अध्यायों में जिन अपराधों का जिक्र है वह प्रायः राज्य के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, इस प्रकार से धर्म के विरुद्ध ऐसे करके है। जबकि अध्याय 16 से 22 तक में जो जिन अपराधों का उल्लेख है वे प्रायः किसी व्यक्ति के माध्यम से हैं, जैसे किसी व्यक्ति की हत्या, किसी के साथ बलात्कार, किसी की संपत्ति की चोरी, किसी के विवाह संबंधी अपराध, किसी की मानहानि, यानी ये इंडिविजुअल ऑफेंसेस हैं। क्या जबरदस्त ड्राफ्टिंग है मैकाले की। तो अब आप देखते जाइए और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां आपको एक आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग और मिलेगी कि शुरू के चैप्टर्स में बड़े गंभीर अपराध हैं, ठीक है। जैसे अगर इसके हम गंभीरता से इसका चार्ट बना दें तो ये चार्ट ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, कि ये मान लेते हैं कि ये ऑफेंसेस हैं, ये ऊपर से नीचे 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 थोड़ा ये हल्के होते जाएंगे, यानी इधर के अपराध बहुत गंभीर हैं और उधर जाकर अपराध हल्के होंगे। उसी तरह से ये भी होगा कि इधर के अपराध गंभीर अपराध होंगे और इधर के अपराध हल्के होंगे, यानी दोनों ही ब्लॉक्स में शुरू में गंभीर अपराध लिखे हैं। इधर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट लाइक वार, सेडिशन, ओके, युद्ध, राजद्रोह जैसे अपराध अध्याय 6 में लिखे। चैप्टर 7 ऑफेंसेस अगेंस्ट मिलिट्री, आर्मी, आर्म फोर्सेस, ठीक है, चैप्टर 7 में लिखा हुआ है। चैप्टर 8 ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक शांति या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, दंगा गलवा। चैप्टर 9 ऑफेंसेस बाय पब्लिक सर्वेंट, चैप्टर 9, ठीक है। और चैप्टर 9 के बाद 9 है तो बाद में इंसर्ट किया गया, सो यू शुड गो ऑन चैप्टर 10। चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 देयर इज अ गुड कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू चैप्टर्स, बट the very great logic behind the two chapters, the provisions of two chapters, chapter 9 and chapter 10, have been avoided, have not been cared by the Parliament of India before insertion of chapter 9A. Otherwise, chapter 9A shouldn't be inserted on that place. Why I am saying that? Look at these chapters. Chapter 9 offenses by public servant, chapter 10 offenses against public servant. There was no scope to insert another kind of nature of chapter between the two chapters. So why I am criticizing that the provisions of chapter 9A shouldn't be inserted here. Either it should be inserted before 9, it means under the name of chapter 8A, or either after chapter 10 as 10A. या तो इसे यहां रखे होते या यहां रखे होते, 9A को बीच में नहीं डालना चाहिए था। What have been provided in 9A? Offenses related to election, because when the code has been enacted there were no such problem, because in that era there was no election being conducted in India. Okay, उस समय भारत में जब 1860 में संहिता बनी तो इस प्रकार से निर्वाचन नहीं हो रहे थे कि उसके संबंधित अपराधों की चर्चा की जाए। इस नाते 9A यानी 9 को बाद में जोड़ा गया। मेरा यह सुझाव है और यह आलोचना भी है कि यह गलत जगह पर जोड़ा गया। यह लॉर्ड मैकाले की इतनी खूबसूरत रचना के सौंदर्य को बिना देखे जोड़ा गया। द आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग, द ब्यूटी ऑफ the codification has not been cared. Okay, इसकी परवाह नहीं की गई है। नहीं तो अध्याय 9 को यहां नहीं जोड़ा गया होता, या तो ये 7 का होता, या तो ये 6 का होता, या तो 8 का होता, अथवा ये 10 का होता। 9 का करके नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि अध्याय 9 लोक सेवकों के द्वारा अपराध, अध्याय 10 लोक सेवकों के विरुद्ध अपराध। इन दोनों के बीच में कोई नया अध्याय जोड़ना उचित नहीं था। खैर, चैप्टर 11 ऑफेंसेस अगेंस्ट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन,
ठीक है, मेकिंग फॉल्स एविडेंस, गिविंग फॉल्स एविडेंस, ओके, ये सारी बातें यहां है। न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध। चैप्टर 12 ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइन एंड ऑफिशियल स्टाम्प्स, सिक्का और सरकारी स्टाम्पों के से संबंधित अपराध। ठीक है, एक और भी मिस्टेक की गई है, मैं बाद में बताऊंगा जब मैं इधर चर्चा कर लूंगा तब। चैप्टर 13 ऑफेंसेस अगेंस्ट वेट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू वेट्स एंड मेजरमेंट्स, बाट माप से संबंधित अपराध। चैप्टर 14 ऑफेंसेस रिलेटेड टू पोल्यूशन, पब्लिक न्यूसेंस एंड पोल्यूशन। चैप्टर 14 लोक उपताप और लोक अपदूषण, प्रदूषण से संबंधित अपराध। अध्याय 14 एंड ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन have been provided in chapter 50, ठीक है, धर्म विषयक अपराध अध्याय 15 में प्रावधानित है। ऑल द ऑफेंसेस आर नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि या तो ये राज्य के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, सरकार के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, लेकिन ये व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। चलते हैं इधर, देखते हैं अध्याय 16 चैप्टर 16 ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध अपराध। 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। द प्रॉपर्टी मे बी ऑफ एनी इंडिविजुअल, इवन मे बी ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज ए पब्लिक, द स्टेट इज पर्सन, ठीक है, राज्य भी एक व्यक्ति है। ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज से संबंधित अपराध। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, करेंसी नोट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, सो ऑफेंसेस रिलेटेड टू करेंसी शुड बी प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 18 और अंडर चैप्टर 12। वंस अगेन रिवाइज, अंडर चैप्टर 12 ऑफेंसेस रिलेटेड टू कॉइन और ऑफिशियल स्टाम्प्स, दो कॉइन्स आर may be considered as documents also, but stamps are document, okay, but even these have been classified, the offenses related to official stamps or coins have been classified, have been provided in chapter 12. Then why should not the offenses related to currency should have been provided in chapter 12 in lieu of providing it under chapter 18? But in 1989, but the offenses related to currency like making fake currency etc have been provided in section 489A, 489B, 489C, 489D and 489E in chapter 18. I am not agree with this classification, though I, being a citizen of India, I have bound to follow the provisions, but on the basis of beauty of the draft, it is a stigma on that beauty. Okay, under chapter 19 offenses related to contract, under chapter 12 offenses related to marriage, under chapter 20 under chapter 20 offenses related to marriage, under chapter 20A offenses cruelty by husband or his relative against wife, पत्नी के विरुद्ध उसके पति या नातेदारों द्वारा क्रूरता। under chapter 21 of defamation, offense of defamation, मानहानि का अपराध। and at last chapter 22 of criminal intimidation, annoyance etc, ठीक है, आपराधिक अभित्रास, क्षोभ आदि, अपमान आदि, इन सब लोग। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो क्या खूबसूरत तरीके से वर्गीकरण किया गया है। इस आईपीसी के सौंदर्य को देखने लायक है कि अध्याय 6 से जो शुरुआत होती है वो 15 तक में समाप्त होती है, फिर 16 से शुरू होकर 22 तक चलता है, और शुरू में उस विषय के गंभीर अपराध दंड के आधार पर, प्रभाव के आधार पर
जबकि वर्तमान में सबसे खतरनाक तो हो गया धर्म विषयक अपराध, लेकिन जिस समय संहिता लिखी गई उस समय इसे बहुत कम दंड से दंडनीय किया गया है। आज धार्मिक भेदभाव फैलाना, जहर विष उगलना रिलीजियस ग्राउंड पर भारत की एकता के लिए खतरा पैदा कर रहा है, लेकिन फिर भी संहिता में इसके लिए बहुत कम दंड की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने आईपीसी के इस पूरे ड्राफ्ट को समझा है। उम्मीद है कि आपके लिए इनके अध्यायों को याद करना आसान होगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इन दोनों में क्या फर्क है। आप चैप्टर 14 के एक सेक्शन को ले लीजिए 292 या दूसरा सेक्शन लीजिए 294, अश्लील गाने गाना, सिंगिंग ऑब्ससीन सॉन्ग्स। ठीक है, अगर कोई पर्सन कहीं भी अश्लील गाने गा रहा है किसी पब्लिक प्लेस पर, ठीक है, विदाउट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति को लक्षित किए बिना, स्पेशली विदाउट टारगेटिंग एनी वुमेन, ठीक है, किसी महिला को लक्षित किए बिना अगर गाना गाता है, अश्लील बातें करता है, देन ही वुड बी लायबल अंडर सेक्शन 294 which is a section under chapter 40 of this book। तब वो सेक्शन 294 के तहत अपराधी माना जाएगा और यह अध्याय 14 की धारा होगी। बट इफ ही sings that song targeting a woman, okay, then it would be an offense under section 509 which is a section of chapter 22। अगर वो किसी महिला को लक्षित करके ऐसे गाने गा रहा है किसी प्लेस पर, तब वो अध्याय 22 की विषय वस्तु हो जाएगा और धारा 509 का अपराध होगा। यानी किसी व्यक्ति को चाहे लक्षित करे बिना लक्षित किए अगर अपराध किया गया तो इस वर्ग में आएगा, लक्षित करके किसी व्यक्ति को किया गया तो इस वर्ग में आएगा। ठीक है, जबकि यह भी सही है कि जैसे इमेजिन करें कि कोई टेरर एक्टिविटी होती है, ठीक है, कहीं से आतंकवादी हरकत होती है और उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं, तो वहां ये धाराएं भी लगेंगी और मर्डर की भी धाराएं लगेंगी। ठीक है, दोनों लगेंगी। लेकिन अगर कहीं कोई इंडिविजुअल किसी को मारता है, चाहे भले वो मास मर्डर हो, कई लोगों को एक आदमी मार डाले, बट अगर अपने अपने निजी दुश्मनी में मारता है तो ये चैप्टर्स नहीं लगेंगे, बल्कि केवल यही लगेगा। इस प्रकार इन दोनों के ऑब्जेक्ट के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। सो व्हाई द ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ द ग्रुप्स मस्ट हैव बीन अंडरस्टैंड, ओके, must have to be to understand the concept of the Indian Penal Code। भारतीय दंड संहिता की संकल्पना को समझने के लिए इन दोनों उद्देश्यों की, दोनों वर्गीकरण के, दोनों वर्गों के पीछे के मकसद को समझना बहुत जरूरी है। ओके, so enjoy the lecture। In next video we will discuss on the same chart, on the basis of this chart, that how the Indian Penal Code is general penal code for India। In next lecture we will discuss with this chart। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग इसी चार्ट के सहारे डिस्कस करेंगे कि भारतीय दंड संहिता एक साधारण दंड संहिता कैसे है। ओके, सो एंजॉय द लेक्चर, बाय।